welcome back to our channel. Today I am here up with another interesting video which talks about mechanism of breathing. So are you excited to know what actually happens in your chest cavity when you are breathing, right? So before we get into what actually happens when we breathe, on what principles it works, let's familiarize ourselves and clear our concept on some basic term, what respiration is, what breathing is, what cellular respiration, right? So respiration, if I ask you, how will you define it? कैसे डिफाइन करोगे आप लोग रेस्पिरेशन? Some will say मैम ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, some will say मैम taking in of oxygen and exhaling it of CO2. So what is correct? Actually respiration is some of both these process, right? So respiration is a term which include both external respiration, also called as breathing or inhalation. External respiration or breathing or ventilation, right? Which is basically the process of exchange of gases, taking in, inhaling the oxygen and exhaling the CO2. Why you are inhaling oxygen? In order to oxidize the digested simple forms of the digested food, and oxidize किस लिए करना है? To generate energy. So that is called internal respiration or सेल्यूलर रेस्पिरेशन. उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल और सेल्यूलर रेस्पिरेशन, which means the oxidation of food to generate energy. Oxidation of food to generate energy. और इसी के ही प्रोडक्ट होते हैं CO2 and water, aerobic respiration. So CO2 is toxic for our body and it has to be removed, जो हम exhalation के through करेंगे. This is actually respiration. Today I am going to talk about how do we actually breathe. So breathing is process of exchange of gases, which is inhaling the oxygen and exhaling the CO2. What is the site of this exchange? So which is the primary site of exchange? It is alveoli. Alveoli of the lung is the primary site where oxygen is taken in and CO2 is taken out. So inhalation or intake of oxygen and exhalation of CO2, right? अब ये पूरा जो intake है oxygen का और exhalation है CO2 का, it is working on what principle, on what basis? So the principle is, number one, that gas will always diffuse from high pressure to low pressure. Gases always move from high pressure to low pressure, to the side where the pressure is low. First thing you have to remember this. Second is basically the principle of Boyle's law. You must have done in your physics that according to Boyle's law, pressure and volume are in inverse relationship at constant temperature. This inverse relation holds true at constant temperature. तो अगर temperature constant है, pressure और volume inverse relationship में. Humans, mammals, homeotherms, warm-blooded, ability to maintain the constant body temperature irrespective of the temperature outside or in the ambient environment. Correct? So constant temperature पर आपकी body में भी अंदर pressure और volume का relation कैसा चलेगा? Inverse. और gases कहाँ से कहाँ diffuse हो रही है? High to low pressure. Inhalation किसका करना है? Oxygen का. तो जब मैं inhale करना चाहती हूँ तो अंदर pressure क्या होना चाहिए? हाई टू लो जाता है ना, तो अंदर प्रेशर लो होना चाहिए और बाहर प्रेशर ज़्यादा. अंदर अगर प्रेशर मुझे लो करना है, इफ़ आई हैव टू डिक्रीज द प्रेशर, तो वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा.
क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है। तो इनहेलेशन के टाइम में बॉडी क्या करती है, प्रेशर को डिक्रीज करती है, बट कैसे, बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक कैविटी। और थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम अगर बढ़ गई तो पल्मोनरी वॉल्यूम यानी लंग्स में एल्वियोलाई का भी वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है, और प्रेशर क्या हो जाएगा अंदर कम, कंपेयर टू आउटसाइड ऑक्सीजन रशेस इन, हाई टू लो प्रेशर। अब मुझे क्या करना है, एक्सेल करना है। एक्सेल करने के लिए बाहर, तो बाहर प्रेशर क्या होना चाहिए, कम, और अंदर प्रेशर ज़्यादा, क्योंकि हाई टू लो जाता है। सो एक्सेलेशन में वी वांट प्रेशर क्या हो, अंदर ज़्यादा, बाहर कम। तो प्रेशर ज़्यादा करने के लिए वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज, ठीक है, वॉल्यूम को हम डिक्रीज करेंगे। अब इसी प्रिंसिपल पे आपका काम होगा पूरी बॉडी का। ये दो चीजें समझ में आई और इसी पे ही पूरा प्रोसेस चल रहा है। लेकिन ये जो हम वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं या वॉल्यूम कम कर रहे हैं, ये किसकी हेल्प से करेंगे, द बॉडी इंक्रीजेस द वॉल्यूम एंड डिक्रीजेस द वॉल्यूम विद द हेल्प ऑफ टू मसल्स, एंड दोज आर डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल। तो देखो, इस चेस्ट कैविटी की वॉल्यूम को बढ़ाने में और कम करने में दो मसल्स का इन्वॉल्वमेंट है। पहली मसल है डायफ्राम। इफ यू सी, डायफ्राम इज अ डोम शेप मसल, ये रही डोम शेप मसल, जो आपके लंग्स और हार्ट के नीचे प्रेजेंट होती है, एंड इट इज कनेक्टेड टू द ब्रेस्ट बोन विच इज स्टेरनम, राइट। ये आपकी चेस्ट कैविटी है, लंग्स है, यहाँ पे वेंट्रली स्टर्नम ब्रेस्ट बोन होती है, लेटरली ये रिब्स हैं, जो सेक्शन में आपको ट्रांसवर्स सेक्शन में उनका इतना पार्ट दिखाया गया है, अदरवाइज ये इसको पूरा कवर करती है, रिब केज। और पोस्टीरियरली क्या है, डायफ्राम। पीछे डॉर्सली क्या प्रेजेंट होगा, वर्टिब्रल कॉलम। तो पूरी चेस्ट कैविटी एयर टाइट चैम्बर है, इसलिए कोई भी चेंज वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी विल ब्रिंग अ कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द एल्वियोलाई, ठीक है। सो ये जो वॉल्यूम का चेंज है वो डायफ्राम, ये डोम शेप मसल, जिसके पुल होने से हमें वॉल्यूम बढ़ाना होता है ना जब हम इनहेल करते हैं ताकि प्रेशर कम हो, तो ये नीचे जाता है, इट गोज डाउन। और रिब्स की मसल, ये रिब्स हैं कि आपको ट्रांसवर्स सेक्शन में दिखाया है कटिंग्स, इनके बीच में ये रेड रीजन आप देख रहे हैं, दैट रिप्रेजेंट द मसल्स। ये जो मैं येलो से मार्क कर रही हूँ यहाँ पे, दिस इज द मसल बिटवीन द रिब्स, और इनके कॉन्ट्रैक्शन से रिब्स जो है दे मूव आउट व्हेन यू इनहेल। तो ये ऐसे बाहर जाती है नीचे, तो आपका वॉल्यूम बढ़ जाता है। एक्सेल करते हो तो ये रिलैक्स करके वापस आती है, वॉल्यूम कम हो जाता है। तो इन मसल को बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल। सो मसल्स इन्वॉल्व्ड इन ब्रीदिंग, muscles involved in breathing. सबसे पहली मसल कौन सी है, डोम शेप मसल कॉल्ड डायफ्राम। वेरी गुड। डायफ्राम, it is a dome shaped muscle which is present on the lower side or posterior side of chest cavity, attached to your sternum also, ठीक है। And second muscle involved is intercostal muscle. Intercostal muscle. Inter मतलब between, costa means, costa is a term referring to ribs. So ये मसल रिब्स के बीच में है ना,
So intercostal muscles are muscles found in between the ribs. इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है. हमने क्या बोला था कि इन्हेलेशन में वॉल्यूम को बढ़ाना है ताकि प्रेशर कम हो सके बाहर के एनवायरनमेंट के कंपैरिजन में, और गैस फिर हाई प्रेशर बाहर से अंदर की ओर रश करेगी. करेक्ट. सो अब आप अपनी हाथ, यू कीप योर हैंड ऑन योर चेस्ट एंड ट्राई टू इनहेल. सो व्हाट हैपन, आपका चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा, लिफ्ट हुआ. क्यों लिफ्ट हुआ? क्योंकि बॉडी ने क्या बढ़ाया? वॉल्यूम. कैसे बढ़ाया? जब हमने इनहेल किया तो डायफ्राम मूव डाउनवर्ड, ये नीचे चला गया. ये रिब्स की मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से रिब्स बाहर की ओर लिफ्ट हो गई, तो पूरा जो आपका कैविटी का वॉल्यूम है वो बढ़ गया. सो सी, डायफ्राम ड्यूरिंग इनहेलेशन विल कॉन्ट्रैक्ट, और डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो डोम शेप की बजाय नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा? फ्लैट. इसी टाइम पर इंटरकोस्टल मसल्स भी क्या कर रही हैं? दे आर कॉन्ट्रैक्टिंग, और जब इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो रिब्स जो है बाहर की ओर लिफ्ट हो जाएंगी. सो इट विल बी लिफ्टेड अपवर्ड एंड इट मूव आउट. इन दोनों की वजह से डायफ्राम का नीचे जाना, रिब्स का बाहर अपलिफ्ट होना वॉल्यूम को बढ़ा देगा. वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर विल डिक्रीज कंपेयर टू द आउटसाइड प्रेशर, एंड ऑक्सीजन विल इवेंचुअली रश इनसाइड from outside high pressure to inside your chest cavity which is low pressure. Contraction require energy, so इसलिए आपका inhalation कैसा process है? Active process. अब यही चीज जब exhale करते हो तो diaphragm अपनी जगह पर वापस आता है. रिब्स जो बाहर अपलिफ्ट हुई थी वो भी बाहर वापस आ जाएंगी अपनी पोजीशन पे, राइट. दे विल कम बैक टू देयर पोजीशन. तो चेस्ट कैविटी क्या हो गई कि वॉल्यूम क्या हो गई? कम हो गई. वॉल्यूम कम हुआ तो प्रेशर अंदर बढ़ गया कंपेयर टू आउटसाइड, एंड CO2 रशेस आउटसाइड. ठीक है. सो डायफ्राम रिलैक्सेस, और डायफ्राम रिलैक्स करने की वजह से इट कम्स बैक to its original position. Intercostal muscle relaxes. Ribs moves back downward to its original position. As a result, volume decreases, pressure compared to the outside will increase, and hence CO2 will move from high pressure to low pressure, means from the chest cavities to the outside. Relaxation है, इसलिए ये एक passive process है. आया समझ में? कब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कब रिलैक्स करेगा, आपको इसको रटना नहीं है. यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, राइट. कॉन्ट्रैक्शन जब होगा तो वॉल्यूम बढ़ना है, और वॉल्यूम कब बढ़ाना है? जब मुझे इनहेल करना है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ाने से प्रेशर कम होगा और गैस हमेशा हाई टू लो प्रेशर डिफ्यूज करती है. क्लियर. अब इसको देखिए, एक मॉडल के थ्रू भी इसको समझते हैं. सी, दिस इज द चेस्ट कैविटी, है ना. ये चेस्ट कैविटी है, और इसमें ये वाइट पार्ट इज योर डायफ्राम. ये आपका एक्सटर्नल पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है. द पिंक कलर्ड आर दी लंग्स. हमने क्या बोला था कि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है इनहेलेशन के टाइम में, एंड इट मूव्स डाउन. ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी. मूव डाउन मतलब वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर कम, तो एयर लंग्स के अंदर आएगी और ये इन्फ्लेट हो जाएगा. सो सी, जैसे ही मैंने डायफ्राम को नीचे किया, लंग्स अंदर इन्फ्लेट हो गई. करेक्ट. देखो, इन्फ्लेट हुई. क्यों हुई? क्योंकि नीचे करने से वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर कम हुआ, बाहर के कंपैरिजन में एयर फटाफट अंदर चली गई. एंड व्हेन इट रिलैक्सेस, कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, एयर बाहर आ गई. आया. सो कॉन्ट्रैक्शन, इनहेलेशन,
relaxation, exhalation. This is what happens in your chest cavity. आ गया समझ में? So that's all for today. I really hope कि आपको आज ये समझ में आया होगा. The similar thing I have shown here through a GIF. See, inhale कर रहे हो तो ये contract करके नीचे गया वॉल्यूम बढ़ा. एक्सेल करते हो तो ये ऊपर जाता है. ठीक है? If you really like our video, do like, share and subscribe to our channel. Stay tuned for more interesting videos. Comment down what else, what's the next topic I should prepare a video for you, and stay tuned to our channel. Thank you. Bye.